Hello everyone, welcome to all of you. We will start linear algebra. So linear algebra नेट गेट जेम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। सो बहुत अच्छे से केयरफुली पढ़े और लिनियर अलजेब्रा की बुक रेफरेंसेस के लिए आप फॉलो कर सकते हो स्टीफन फ्रीडबर्ग। ये एक बहुत अच्छी बुक है। शोम सीरीज चैलेंजिंग प्रॉब्लम बाय फ्यूजन जंग, इसमें बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम मिल जाएगी आपको। और हेल्मोस वो काफ़ी हाई लेवल बुक है। सो फर्स्ट टाइम आप इसको फॉलो ना करें, इन तीनों में से कोई सी एक बुक फॉलो कर लें। सो लीनियर अलजेब्रा की एप्लीकेशंस क्या आती है, जैसे कि इमेज प्रोसेसिंग हो गया, सी एस कंप्यूटर साइंस में काफ़ी यूज़ होता है, कंप्रेसिव सेंसिंग में होता है, क्रिप्टोग्राफी, तो ये सब बहुत सारी है। इमेज, एक जो इमेज होती है वो भी एक मैट्रिसेस होती है। सो हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे? मैट्रिक्स एनालिसिस, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, रैंक, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, सिमिलरिटीज ऑफ मैट्रिसेस, वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनर प्रोडक्ट। सो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विथ मैट्रिसेस एनालिसिस। सो मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर वे ऑफ राइटिंग नंबर, कैरेक्टर एंड सिंबल्स। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A is the size of m cross n, where m is the number of rows and n is the number of columns. So represent by a1 इस टाइप से, and in short ऐसे भी लिखते हैं aij, where m n size. So aij क्या है? ijth element of the A, like a22 is the 22th element of the matrix A. Okay. So type of matrices, if A is the m cross n matrix, so what is the column matrix? A matrix having only one column, then we call it is a column matrix like this, where m number of rows and one is column. So A, for example, minus 10, 0, 10 is the column matrix. What is the row matrix? A matrix having only one row, like this, where number of column is n and row is 1. So 1, 2, 3. So next is zero matrix. A matrix is called zero matrix. All the element of the matrix is equal to 0. So all the entries of matrices is 0, then we call it zero matrix. Square matrix क्या होती है? If number of column equal to number of rows, so we call it square matrix. Means number of rows and column are same. Upper triangular matrix. A matrix A is called upper triangular matrix if Aij equal to 0 for all I greater than j. Like here, if this is the A2 with 1 entries, so 2 is greater than 1, so it is 0. And below entries of the diagonal is equal to 0, and above entries can be anything, non-zero, 0. In lower triangular, a matrix is called lower triangular if Aij is equal to 0 for I less than j. Means here A 1, 2, so 1 is less than 2, so this entry is 0, and diagonal entries and below the diagonal entry can be anything. It can be 0 or non-zero, but above the diagonal entries, all the entries are 0. Next, diagonal matrix. A square matrix is called diagonal matrix if Aij equal to 0 for all I not equal to 0. J, sorry. So here 1, 2. So 1 not equal to 2, तो ये 0 होगा. So means only diagonal entries क्या हो, 0 या नॉन 0 कुछ भी हो, but ये सारी एंट्रीज 0 होनी चाहिए. सो ऐसे मैट्रिसेस को डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं. स्केलर मैट्रिक्स. ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर matrix if all the diagonal entries are same. So in this case, all the diagonal entries are A. So this is the scalar matrix. What is unit matrix or identity matrix? A matrix is called
A scalar matrix is called a unit matrix or identity matrix if all the diagonal entries are equal to 1. So in this case, 1, 1 on the diagonal and rest of the all entries are 0. So basic matrix operation. If A is the M cross N matrix and B is the P cross Q matrix, then the addition of matrix is defined by if M equal to P and N equal to Q, means नंबर ऑफ रोज दोनों मैट्रिसेस में सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम भी सेम हो, तभी मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल होता है। और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए प्लस बी इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे, मतलब ए वन वन को ऐड होगा बी वन वन के साथ, ऐसे ए टू टू होगा बी टू टू के साथ। व्हाट इज लीनियर कॉम्बिनेशन, इफ अल्फा ए प्लस बीटा बी, देन हम क्या करेंगे, अल्फा को ए की हर एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट कराएंगे और बीटा को बी के सारे एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट करा के ऐड कर देंगे। और व्हाट इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इफ अल्फा टाइम्स ए करेंगे तो अल्फा को ए के सारे एलिमेंट के साथ नॉर्मली प्रोडक्ट करके लिख देंगे। व्हाट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n साइज की और b मैट्रिक्स है p क्रॉस q साइज की, तो वो मैट्रिक्स प्रोडक्ट कब सेंस करेगा, जब n इक्वल टू p हो जाए, मीन्स नंबर ऑफ a के नंबर ऑफ कॉलम b के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। सो हमारे पास ये मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स B है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम A के है n और नंबर ऑफ रोज है B की n, तब इनका प्रोडक्ट डिफाइन है। कैसे डिफाइन होगा, प्रोडक्ट ए बी ऑफ साइज क्या होगी, m क्रॉस q, ये थे ऐसे m क्रॉस q की साइज होगी और सी आई जे से। तो यहाँ पे सी आई जे क्या है, समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 टू n a i k b k j। सो i क्या है, अगर हम यहाँ से कोई एक रो उठाते हैं, जैसे सेकेंड रो ले रहे, तो i क्या है हमारा 2 एंड k क्या है, वेरी कर रहा है फ्रॉम 1 टू n, एंड b हम अगर कोई सा भी फर्स्ट कॉलम ले लीजिए, तो जे क्या है हमारा 1 और के जो यहाँ पे होगा वो वेरी कर रहा है n। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, सी आई जे इक्वल टू समेशन के 1 टू n ए आई के बी के जे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो व्हाट इज द मैट्रिक्स स्पेस, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स का स्पेसेस लिखना है तो वो सारा कलेक्शन होगा m क्रॉस n मैट्रिसेस ओवर r का, देख रहे हैं हम यहाँ पे, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सारी मैट्रिसेस का कलेक्शन ले रहे हैं m क्रॉस n का, जहाँ ए आई जे कहाँ से आ रहे हैं, सेट r से आ रहे हैं। और अगर हम r की जगह कोई अदर फील्ड कर देते हैं तो उस केस में m क्रॉस n की वो सारे मैट्रिसेस जिनकी एंट्रीज फील्ड से हो, हम फील्ड के अलावा भी जैसे जेड से भी ले लेते हैं, ऐसे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से ले सकते हैं। अगर हमारा यहाँ जेड कर देंगे तो एंट्रीज जेड से आ जाएगी। सो हम एक क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर हमारे पास कोई मैट्रिसेस है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है विथ साइज एन, और एन कहाँ से 2 या 2 से बड़ा है, और एंट्रीज कहाँ से आ रही है आर, और किस प्रकार गिवन है ए बी इक्वल टू 0, देन क्या ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे या फॉल्स बताना है। कि अगर मेरा कोई भी मैट्रिक्स है, एक ए और बी, एन साइज है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और आर से एंट्रीज आ रही है और ए बी का प्रोडक्ट 0 है, तो क्या बी ए भी 0 होगा, और क्या आइदर ए 0 और बी 0 दोनों में से एक 0 हो या दोनों ही 0 हो, ऐसा कुछ केस बनेगा। सो ये ट्रू है या फॉल्स है पता करना है। तो ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल है, ए लेते हैं 0 0 1 0, बी क्या ले रहे हैं हम 0 0 0 1। सो ए बी का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, 0 0 0 0, ए बी 0 है। अब हमें बी ए देखना है, तो बी ए में क्या होगा, 0 ए बी 0, फिर हम क्या करेंगे 0 1 को इससे, तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो बी ए नॉन जीरो है, तो फर्स्ट फॉल्स हो गया और सेकंड भी फॉल्स हो गया, क्योंकि हमारा ए और बी दोनों ही नॉन जीरो है, बट ए बी का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक इट, एंड प्लीज यू हैव एनी क्यूरीज देन आस्क इन द कमेंट, एंड आप कुछ सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट में सजेशन दे दीजिए। थैंक यू सो मच।